Okay, so yesterday we have started the basic electronics topic, and this topic we have studied about how electronics can be defined and why it is defined on the basis of electrons, and how the electrons will move from one energy level to another energy level and depend upon the movement of electrons from one energy level to another energy level. That is the rate of movement. Depending upon the rate of movement, the material can be classified into three categories, that is semiconductor, insulator, and in between conductor and insulator, the semiconductor. Okay, now the electronics entire field will depends upon the movement of electrons in the semiconductor device. So most of the about 80% of the electronics equipment or 80% of the electronics core elements will be developed from semiconductor device. Semiconductor device. Okay, so our main interest of study is semiconductor, and since semiconductor is mostly use electronics component or mostly use element to develop the electronics components, so we have to study it, or we have to analyze the behavior of semiconductor. Okay, uh, use of semiconductor and structure. What happened in the semiconductor structure of semiconductor? What happened in the semiconductor when some current source is applied on it? Okay, so this analysis we will do in our electronics classes or in our electronics study. So before going to the main topic, that is about semiconductor, we have to know few points regarding semiconductors. Okay, so this is, in this case I will give the heading, that is important properties of semiconductor. Important properties of semiconductor, and depending upon these properties, all the semiconductor device will be classified, or all the semiconductor device will show that properties, which properties will shown by a particular semiconductor. So first one is resistivity of semiconductor. Resistivity of semiconductor, that is, it has resistivity less than insulator, less than insulator, but more than conductor. Okay, next is point number 2, that is negative temperature coefficient. Negative temperature coefficient, that means the resistance decrease with the rise in temperature. As you know that whenever we will apply the temperature, when we will apply the temperature, that means when we will give the excitation to the electrons will move rapidly. एक मिनट रुको, just a minute. So negative temperature coefficient, as I told that with the increase in temperature, the electrons will get more excitation, and due to that excitation, the electron will jump quickly from one stage to another stage. So if the electron will move very easily with the rising of temperature, that means electron movement, due to movement of the electron, current will flow. Okay, and due to this current flow, my resistivity will be decreased. Got it? So my resistivity will be decreased.
So if the temperature will be given more, that means resistance will decrease. So that is increasing temperature, decreasing resistance. That means it is known as negative temperature coefficient. That means टेम्परेचर अगर बढ़ता है मेरा रेजिस्टिविटी घटता है, टेम्परेचर अगर घटता है रेजिस्टिविटी बढ़ता है. तो वी आर कंसीडरिंग द रेजिस्टेंस on the basis of the resistance. So in that case I can say temperature will be in terms of negative coefficient. That means negative temperature coefficient. So in this case we can write the resistance will decrease, the resistance will be decreased with the increase in temperature and vice versa. Got it? समझ में आया सबको यहां तक? सर नेगेटिव टेम्परेचर को ऑफिशियल जो है ना सर वो वाला एक बार समझा दीजिए. नेगेटिव टेम्परेचर मतलब देखो, अगर टेम्परेचर के साथ मेरा कोई पैरामीटर बढ़ता है तो दोनों ही देखो पॉजिटिव में जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज पॉजिटिव कोएफिशिएंट. बट वेन एवर आई एम कॉन्सिडरिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मैं कॉन्सिडर कर रहा हूं. ठीक है, तो इन द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अगर मैं रेजिस्टेंस के नजरिए से देखूं तो देखो कि रेजिस्टेंस जब घटता है दैट मींस टेम्परेचर बढ़ने से ही रेजिस्टेंस घटता है. दैट इज टेम्परेचर अगर राइज करता है, टेम्परेचर अगर राइज करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट बढ़ जाता है. इसमें कोई ये डाउट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है. No. अगर इलेक्ट्रॉन Yes, sir. मूवमेंट बढ़ता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बढ़ेगा तो करंट का मूवमेंट भी बढ़ेगा. आई करंट का वैल्यू अमाउंट भी बढ़ेगा. ठीक है, अगर करंट बढ़ता है दैट मींस रेजिस्टेंस जो है घट जाएगा. क्योंकि रेजिस्टेंस का मेन मोटो क्या है, करंट को रोकना. बट वही करंट अगर बढ़ रहा है दैट मींस आई कैन से रेजिस्टेंस घटता है. तो देखो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में रेजिस्टेंस का डायरेक्शन जिस तरफ है, टेम्परेचर का डायरेक्शन दूसरे तरफ है. यस और नो? अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है दैट मींस टेम्परेचर घट रहा है, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है दैट मींस टेम्परेचर बढ़ रहा है. यस और नो? यस सर. तो रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर को नेगेटिव एक्सिस में देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस कब घटेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा. रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर घटेगा. So that's why in the point on the basis of the resistance I can say this is negative temperature coefficient. That means resistance जिस तरफ डायरेक्शन होगा टेम्परेचर का डायरेक्शन उल्टा तरफ होगा. अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है टेम्परेचर घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है. नाउ अगर हम टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट. बट एज आई टोल्ड दैट टेम्पर रेजिस्टेंस जो है मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है मेरा रेजिस्टिविटी के ऊपर, मेरा सेमीकंडक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड कर रहा है, ना कि टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी सर्किट में अगर इसका कनेक्शन दूंगा तो मैं मेन देखूंगा उसका रेजिस्टिविटी कितना आ रहा है. तो टेम्परेचर को हम साइड में रखते हैं, रेजिस्टर के पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में हम कंसीडर करेंगे. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू द टेम्परेचर कोएफिशिएंट विल बी इन नेगेटिव एक्सिस. So that's why it is called negative temperature coefficient. Got it? Yes, sir. Okay. Next is impurities. Third properties. Addition of impurities. Okay. So in that case impurity can be added. Impurity can be added for better performance
for better performance of semiconductor. So that portion we have already discussed normal class में कि impurity add होता है and after few steps we will find out how the impurity can be added. क्योंकि impurity का मतलब कि ये नहीं कि कोई भी impurity हम डाल सकते हैं, उसमें भी condition apply होगा. So first properties क्या है, semiconductor अगर कोई material हम choose करेंगे that means that material is able to take some impurities from the outside. And that impurity will be in the form of arsenic, gallium. That is arsenic, gallium, ठीक है, etc. Whatever the pentavalent element and trivalent element will be added. Okay, so these three properties are the basic or main properties of semiconductor. Every semiconductor material will show this property. ठीक है, तुम कोई भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं चूज कर पाओगे जहां पे तुम इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर पाते हो, क्योंकि एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर यू कैन ऐड द इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर. नाउ यू विल नेवर फाइंड अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट व्हिच विल गिव्स पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है. ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यू विल नॉट फाइंड आउट. ठीक है, सो इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, एनी सेमीकंडक्टर मटेरियल यू विल सी during increasing in temperature the resistivity will be decreased, during decreasing in temperature the resistivity will be increased. And the first one is the resistivity of the semiconductor. If in case of all type of semiconductor, the resistivity of the semiconductor is more than your conductor as well as less than your insulator. ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी सबको समझ में आया? अगर यस तो मैं नेक्स्ट स्टेप में प्रोग्रेस करूंगा. यस सर, समझ आ गया. ओके, नाउ मेन है, अभी हम लोगों का मेन स्टडी पॉइंट ऑफ स्टडी है सेमीकंडक्टर. तो मैं अभी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी देख लिया हूं. ठीक है, नाउ सेमीकंडक्टर का बॉन्डिंग इन सेमीकंडक्टर मटेरियल. So as I told, strongly bonded covalent bond will be there. हेलो सर. हाँ बोलो. सर एक्चुअल में सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? That is वो मतलब that is सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर भी नहीं है पूरा पूरी, ठीक है, और पूरा पूरी इंसुलेटर भी नहीं है. समझा? यस. कंडक्टर में क्या होता है, वहां पे तुम्हारा एनर्जी बैंड का जो गैप होता है वो नहीं रहता है, और तुम्हारा इंसुलेटर में क्या है, गैप इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक पहुंच नहीं पाएगा. तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इन बिटवीन दिस. ठीक है, ना घर का ना घाट का. ठीक है, ना तुम्हारा कंडक्टर है सही मायने पे, ना ये इंसुलेटर है. बट इसका एक प्लस पॉइंट क्या है कि तुम अगर कंडक्टर लेते हो तुरंत ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा एक लेवल से दूसरा लेवल, और अगर इंसुलेटर लेते हो तो एकदम ही फ्लो नहीं होता. सेमीकंडक्टर क्या में, सेमीकंडक्टर में क्या है, एक गैप रहता है, दैट इज लेस देन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ड्यूरिंग दिस गैप यू कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. ठीक है, तुम कंट्रोल कर सकते हो, लाइक पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड. ठीक है, तो तुम्हारा वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर, ये सब जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ है कि तुरंत ही पास नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा गैप रहेगा. और इन बिटवीन, हाँ बोलो. सर आप तो कल बोले थे कि सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सर. हाँ, लेस देन 1.5 अगर होता है तो वेरी रेयर अमाउंट ऑफ करंट विल पास, बट हम लोग चूज करते हैं लेस देन 1.5. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो परफेक्ट होता है. ठीक है, तो क्या होता है, तुम्हारा वो जो सोर्स देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, इन बिटवीन दिस टाइम यू विल गेट द टाइम टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है, इंसुलेटर में तो पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग ऐसा एक मटेरियल को चूज किए जो ना पूरा पूरी कंडक्टर है ना पूरा पूरी इंसुलेटर है. So that's why most of the electronics component or electronics device will be made up of semiconductor material. ठीक है, so समझ में आया सेमीकंडक्टर होता क्या है? यस सर. ठीक है, तो नाउ सेमीकंडक्टर में बॉन्डिंग कैसे बनता है? ठीक है, तो मेनली हम लोग जितना भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं उनमें से
मेरा जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दो टाइप का सेमीकंडक्टर जो है हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, ठीक है। तो मैंने एक कहा था कि सेमीकंडक्टर का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट के लिए। तो जर्मनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना, ठीक है। और सिलिकॉन का होता है तुम्हारा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है, ये दो एलिमेंट का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो विच इज वेरी परफेक्ट टू डिजाइन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर मटेरियल। नाउ समझ में आया जर्मेनियम एंड सिलिकॉन क्यों यूज होता है। यस सर। ओके, नाउ सर मैं देख, हाँ बोलो। सर मतलब कार्बन भी तो सर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा ना सर? नहीं, कार्बन नहीं होगा सर लेकिन क्यों? तुम्हारा पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, तीनों प्रॉपर्टीज क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। कार्बन के साथ तुम इम्प्योरिटी मटेरियल ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा बात है, कार्बन तुम्हारा उतना इजीली अवेलेबल नहीं है जितना इजीली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन अवेलेबल है, ठीक है। सिलिकॉन कुछ नहीं है, सिलिकॉन तुम्हारा बालू का कोना है, बालू जो जिससे बनता है वो सिलिका है, ठीक है। तो इट इज इजीली अवेलेबल, यस। ठीक है। सो दैट्स व्हाई कार्बन तुम्हारा सेमीकंडक्टर का दूसरा क्राइटेरिया है, हम जिस चीज को ज्यादा अवेलेबल है उसी को पहले महत्व देंगे, ठीक है। जो चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बन सकता है बट उसको हम उतना ये नहीं देंगे, मतलब फोकस नहीं करेंगे। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन गर्म होता है, हीट होता है, कुछ भी होता है। बालू को अगर गर्म करोगे तो एट लास्ट वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो बालू ही रहेगा, लेकिन कार्बन को अगर तुम गर्म करोगे, ठीक है, तो वो अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर कंपोनेंट rather than germanium and silicon, ठीक है। सो नाउ germanium and silicon inside the bonding, so it will follow crystalline structure, ये याद रखना, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर जनरेट करता है ड्यू टू दिस बॉन्ड। तो इसीलिए देखोगे सिलिकॉन का जो बॉन्डिंग है, सिलिकॉन का एक पार्टिकल उठाओ, ठीक है, अगर बालू का एक तुम पार्टिकल उठाओ, एक कोना बालू उठाओ, तो देखोगे वो क्रिस्टल फॉर्म करता है, ठीक है। सो द सेमीकंडक्टर विल ऑलवेज शो योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बिकॉज inside the semiconductor the silicon particle will bonded like this, now इसके साथ और एक सिलिकॉन जुड़ता है, इसके साथ और एक सिलिकॉन जुड़ता है, so it will gives you a crystalline structure, ठीक है, जुड़ते हुए जाता है। सर सिलिकॉन का तो 0.3 इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है ना सर? एक्साइटेशन लेवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.3 उसका एक्साइटेशन लेवल, लेकिन सिलिकॉन का मैंने क्या कहा था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो गैप है ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो ये जो गैप है फॉर सिलिकॉन दिस इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फॉर जर्मेनियम दिस इज 0.7, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इन लोगों का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ये एनर्जी नहीं है, ठीक है। गॉट इट। तुम जो बोल रहे हो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन ये है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। हाँ, तो डोंट बी कंफ्यूज,
ठीक है, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप का ये है रेंज है, एंड 0.7 फॉरबिडन गैप का रेंज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.5 से लेस होगा, और फॉर अ परफेक्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल इट मस्ट बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट 1, एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो नियर अबाउट 1। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एंड इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द एटम विल बी बॉन्डेड इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, will give you the crystalline structure. So in this, inside the atom it will gives you the structure of a crystal. So that is the bonding in semiconductor material. Okay, now next is we will go for electron and hole pair. ठीक है, electron and hole pair, and before that we have to know about recombination of or creation of electron and holes, that is creation of electron holes pair। ठीक है, so in this case I can say whenever some external energy, ठीक है, whenever some external energy is supplied to the semiconductor, suppose in the form of heat energy, the valence electron क्या होता है, वो क्या होता है, सपोज यहाँ पे कल मैं जो बताया था, यहाँ पे तुम्हारा कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे तुम्हारा वैलेंस बैंड है। सो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर हम यहाँ से बाहर से हीट एनर्जी देते हैं, दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ बाहर से दे रहे हैं, दैट इज हीट एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एक्साइटेशन लेवल क्रिएशन होगा, और ये एक्साइट होके क्या करेगा, ये तुरंत यहाँ से यहाँ तक जंप करके चला जाएगा। तो ड्यू टू दिस जंप, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक होल क्रिएशन होगा। ठीक है, एंड दिस होल इज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज हियर नो इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, सो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्स होल्स। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ one electrons will move from valence band to conduction band, one holes will be generated, and this creation is due to external energy like heat energy, heat, ठीक है, in the semiconductor. So until and unless we will give some external energy, ठीक है, that is in terms of thermal energy, the electrons will not get excited, and if electron will not get excited, it will not move from valence band to conduction band, and if it will not move from valence band to conduction band, so no such holes will be generated, or no such absence of electron place will be generated. So ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसी मूवमेंट के साथ ही एक होल जनरेट होता है। तो इस जनरेशन का जो पैटर्न है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। समझ में आया? तुम लोग अभी घर में हो, ठीक है, अगर तुम लोगों का छुट्टी ओवर होता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी रहता है कि सेमिस्टर आएगा तो यू हैव टू अटेंड द कॉलेज, तो तुम लोग क्या करोगे, घर से मूव करोगे हॉस्टल में। जैसे ही घर से हॉस्टल में मूव करोगे, तुम्हारा प्लेस जो घर में है उस पोजीशन में वैकेंट प्लेस क्रिएट होगा, और ये तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक तुम्हारा मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो दैट टेंडेंसी और दैट फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन। समझ में आया? यस सर।
ठीक है। और ये देखो, ये जैसे ही एक सेट में हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर क्रिएट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है उसी साथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब एक होल का जनरेशन, दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब दो होल का जनरेशन। सो दिस इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, द सेट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, ये याद रखना, एक ही साथ क्रिएशन होता है, एंड द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स is known as recombination। recombination, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक मूवमेंट करता है, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। सो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो देखो, हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये एनालिसिस के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों है इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट है, ये सब कुछ जो है ना एक हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये तुम नेकेड आई में इसको तुम एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तुम कभी नहीं देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इससे चलते करंट आ रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करके ये जितना भी थ्योरी है इसको डिराइव कर रहे हैं, एंड ड्यू टू व्हिच आई एम गोइंग फॉर एनालिसिस। और इतना एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक्स में इसीलिए है क्योंकि हम लोग नेकेड आई में ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिकल में जैसे क्या हो रहा है, हम लोग रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस का एक वैल्यू हम लोग डीएमएम में या डिजिटल मल्टीमीटर में हम लोग मेजर कर पा रहे हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, हम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इसको कभी नेकेड आई में या मेजर में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, हम एक हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस हाइपोथेसिस द एनालिसिस पार्ट इज मोर एलेबोरेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, नाउ देखो, ये अगर मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का अगर एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इस चीज को और थोड़ा सा डीप में एनालिसिस कर रहे हैं। देखो, मेरा यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, नीचे है मेरा वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या है, अभी खाली जगह है। यस और नो? हाँ, दैट इज गुड, वेरी यस। गुड। होल्स के यहाँ पे अभी खाली जगह है, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ से एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर देगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर देगा तो तब मेरा डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया एक, बाकी जितना भी है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलो। सर प्लस और ऊपर माइनस हो जाएगा, हाँ, तो हम मतलब एक सारा इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा। मूवमेंट कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को हम मूवमेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक पहला इलेक्ट्रॉन मूव किया। तो देखो, नाउ देखो, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका उल्टा क्या कह सकते हैं, होल जो है तुम्हारा कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड तक मूव कर रहा है, तो इसी साथ ही साथ ये जो होल है ये इधर मूवमेंट कर रहा है। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, कि इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, अब होल नीचे आ गया। ठीक है, नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मेरा जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन इधर है, आई। ठीक है, और इसी को हम होल के रेस्पेक्ट में अगर बोलेंगे कि होल का मूवमेंट डाउनवर्ड है, तो करंट का मूवमेंट भी डाउनवर्ड रहेगा। सो दिस करंट इज आल्सो नोन एज होल करंट। ठीक है, अगर होल करंट कोई पूछ दिया तो डोंट बी कंफ्यूज, वो घुमा के नाक देखने की कोशिश कर रहा है।
कि ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सम करंट विल बी मूविंग, ठीक है, उसी को हम उल्टा लिखेंगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स द करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द होल्स, कि होल का डायरेक्शन जिस साइड में रहेगा करंट का मूवमेंट भी उसी साइड में रहेगा, और दिस करंट को हम कहेंगे होल करंट। गॉट इट? यस सर। ओके, सो नाउ ये जो टोटल तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर तुम्हारा सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी बैंड, you have to write this. First of all, you have to define what is conduction band, what is valence band, and what is forbidden energy gap. तो conduction band क्या होता है? From valence band to electrons, conduction band, from valence band to movement of electron from valence band to conduction band, the current will flow. That means the semiconductor will able to conduct the electricity or conduct the current. That's why it is known as conduction band. वैलेंस बैंड क्या होता है? द लोअर बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड इन द एनर्जी बैंड, ठीक है। इन दिस केस एट द फर्स्ट स्टेज इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, but during movement of electrons after the completion of the process, the valence band will remain become the will remain contain the holes, ठीक है, after completion of this process. So this is valence band, and forbidden band is the gap between conduction band and valence band is known as forbidden energy gap. Now you have to describe all these things, कैसे इलेक्ट्रॉन एक मूव हो रहा है ऊपर से नीचे, that is valence band to conduction band, उसी के साथ साथ कैसे होल्स मूव कर रहा है from conduction band to valence band, that is all about electrons and hole recombination. So you have to give this type of explanation whenever they will ask in question, that is describe the movement of conductivity of the semiconductor device using band gap in a band gap theory or using band theory, ठीक है। समझ में आया? एंटर बैंड के रेस्पेक्ट में कैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव कर रहा है और कैसे उसके वजह से तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आया? यस सर। ओके, सो नाउ सर थोड़ा हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर सर आप यहाँ पर किए थे कि होल करंट, तो सर होल करंट में तो होल्स के अकॉर्डिंग ही करंट का डायरेक्शन होगा। हाँ, क्योंकि देखो हम यहाँ पे घुमा के नाक दिखा रहे हैं, जैसे हमको पता है करंट का डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर, तो करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली हायर टू लोअर होगा। और साथ ही साथ देखो अगर होल्स का मूवमेंट भी हम लोग देखेंगे तो होल्स हायर से लोअर तक आ रहा है, तो हम लोग इस स्थिति में पहुंचे करंट का फ्लो भी होल्स का डायरेक्शन के साथ सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, ओके सर। ओके, नाउ सर हाँ बोलो। सर हम पूछ रहे थे ना सर, डायोड किसे कहते हैं सर? डायोड सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। डायोड होता है अगर टू टाइप का सेमीकंडक्टर एक साथ कंबाइन होता है, ठीक है। नाउ हम लोग देखेंगे, अभी मैं जो टॉपिक पे आ रहा हूँ वही डायोड का एकदम प्रीलिमिनरी स्टेज है, कि हम लोग यहाँ पे सेमीकंडक्टर का एक ही टाइप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर ऑल सेमीकंडक्टर्स विल बी ऑफ सेम कैटेगरी, ठीक है। नाउ हम लोग उस सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करेंगे, आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन वी विल मूव टू द डायोड, ठीक है। ओके सर। Okay. So now next thing is semiconductor का type. Move to the next section. Types of semiconductor. So types. So now हम लोग देख रहे हैं सेमीकंडक्टर का जो है ओवरऑल एक ही टाइप का मेरा एनालिसिस चल रहा है। नाउ सेमीकंडक्टर का टाइप्स कैसे होता है? सो अगर मैं तुम्हें दे दूंगा एक ग्लास पानी, ठीक है, तो तुम अगर मैं बोलूंगा इस पानी को पियो, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा वेदर द वाटर इज फिल्टर्ड और प्यूरिफाइड और सर डायरेक्ट नल का पानी हमको पीने के लिए बोल रहा है। सेमीकंडक्टर के लिए भी सेम थिंग है। सेमीकंडक्टर अगर मैं दूंगा तो तुम्हारे दिमाग में दो ख्याल आएगा,
कि whether the semiconductor is pure or impure. So depending upon the purity of the semiconductor depends on purity. Depends on purity. The semiconductor is classified into two categories. That is pure semiconductor. That means this is known as intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. And impure semiconductor, extrinsic semiconductor. ठीक है? So now we will move to the discussion about intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. So first is intrinsic semiconductor. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? जहां पे तुम्हारा सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में रहता है, दैट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सो यहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? ये प्योर फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जो प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर है उसी को हम काम में लगा सकते हैं। एंड दूसरा टाइप है लाइक germanium, silicon, these are the pure semiconductor, that is intrinsic semiconductor. Next is extrinsic semiconductor. Extrinsic, सर हाँ बोलो, हेलो सर हाँ बोलो। सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सर एग्जांपल क्या क्या होगा सर? जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो भी सेमीकंडक्टर है प्योर सेमीकंडक्टर है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में, जर्मनी हाँ जर्मेनियम, सिलिकॉन ये इनिशियल स्टेज में तुम्हारा न्यूट्रल रहता है, ठीक है? सर मतलब एक साथ दो इम्प्योरिटी सर हो सकता है क्या? मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों एक ही स्ट्रक्चर में हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग। या तो जर्मेनियम होगा या फिर सिलिकॉन होगा। हाँ, जर्मेनियम, सिलिकॉन, दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है? ये दो क्या है, ओके तुम्हारा एलिमेंट्स है, ठीक है? बेसिक एलिमेंट्स है। हम लोग यहाँ पे कॉम्बाइन नहीं करेंगे जर्मेनियम को सिलिकॉन के साथ, ओके सर ठीक है? नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक अगर हम लोग कंबाइन करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन को, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे इंप्यूरिटी आएगा ना, वो जर्मेनियम का प्रॉपर्टीज दे पाएगा ना सिलिकॉन का प्रॉपर्टीज दे पाएगा, तो वो इंप्योरिटी होगा। बट impurity is the not the concept of intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor means pure form of semiconductor, ठीक है? इसीलिए हम उसको अलग अलग करेंगे। नाउ तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है कि कॉम्बाइन, कॉम्बाइन जैसे ही हो रहा है वही हम मेरा इम्प्यूरिटी मैच हो रहा है। सपोज सीएससी एक अलग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल अलग ब्रांच है, ठीक है? दोनों अलग इंडिविजुअली इंट्रिंसिक टाइप का ब्रांच है कि प्योर फॉर्म ऑफ सीएससी, दैट मींस द स्टूडेंट्स ओनली बिलोंग्स फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट। In case of electrical, the students only belongs from the electrical department. Now जैसे ही दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दैट मीन्स हम इम्प्यूरिटी ऐड करें, ना ही उसको हम सीएससी फुल कह सकते हैं, ना ही उसको हम कोर इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं, कंबाइन जैसा ही होता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है? एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज impure semiconductor, impure form of सेमीकंडक्टर, ठीक है? और यहां पे इंप्यूरिटी कैसे आएगा? कंबाइन ऑफ एलिमेंट्स which will gives impurity, and this combine is known as doping. डोपिंग, ठीक है? तो यहाँ से मेरा एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज डोपिंग, ठीक है? सो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग टर्म सुने हो, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा हो रहा है डोप टेस्ट। Doping is the process of adding external impurities in the pure semiconductor. So impurity हम कहाँ पे ऐड करते हैं? प्योर एलिमेंट में impurity ऐड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं डोपिंग, जो बाहर से ऐड होता है। जैसे प्लेयर का देखो, हर एक स्पोर्ट्स, बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट से पहले डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट क्या है?
ये एक्सटर्नल के एलिमेंट खुद के बॉडी पे इंजेक्ट करता है, ऐड करता है, ताकि उसका परफॉर्मेंस बेटर आए, मोर इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्साइटेड। ठीक है, जो करंट मेरा 2 सेकेंड बाद फ्लो होना है, वही करंट मेरा आफ्टर 1 और 2 माइक्रोसेकंड बाद फ्लो होगा। सो दैट इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, सो दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज इन द प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। नाउ ये डोपिंग करते कैसे हैं, हाउ द डोपिंग विल बी हैपन, ठीक है, एंड व्हाट अमाउंट ऑफ डोपिंग विल बी कंडक्टेड। ये नहीं कि डोपिंग तुम्हारे पास इंजेक्शन है, तुम एकदम ओवरडोज डोपिंग कर दो एलिमेंट को, मतलब सेमीकंडक्टर को। ठीक है, तो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो डोपिंग शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटी। सो डोपिंग का प्रोसेस होता है, आइदर add 1 electron from external source or take 1 electron from by the external source। यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, by the external source। सो जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है, प्योर फॉर्म से, वो मेरा अमाउंट होगा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि हजारों इलेक्ट्रॉन हम छोड़ दें या हजारों इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ डोपिंग। ठीक है, हम मेरा लिमिटेड है। ठीक है, यह कंडीशन अप्लाई है, स्टार मार्क दिया हुआ है कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी टेकन आउट। ठीक है, सो दिस इज डोपिंग। नाउ ये डोपिंग होता कैसे है, कोई भी मटेरियल के साथ कोई भी मटेरियल ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम करेंगे एडिंग, फर्स्ट वन, एडिंग पेंटावैलेंट मटेरियल्स। पेंटावैलेंट मटेरियल क्यों, क्योंकि जर्मनियम के चारों ओर 4 बॉन्डिंग है, सिलिकॉन के भी चारों ओर 4 बॉन्डिंग है। तो आइदर +1 ऐड करेंगे, +1 पेंटावैलेंट, ठीक है, और -1 ट्राईवैलेंट एलिमेंट ऐड करेंगे, क्योंकि 4 है आउटसाइड। तो आइदर मैं 4 से +1 लूंगा या -1 लूंगा, तो +1 होगा पेंटावैलेंट, -1 होगा टेट्रावैलेंट। ठीक है, सो जर्मनियम और सिलिकॉन को अगर मैं डोप करूंगा, पहले मैं देखता हूं पेंटावैलेंट मटेरियल डोप करने से क्या क्या होता है। तो व्हाट आर द पेंटावैलेंट मटेरियल, वी नो आर्सेनिक, एंटीमोनी। ठीक है, दीज आर द पेंटावैलेंट मटेरियल। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, दीज आर द पेंटावैलेंट मटेरियल। सो नाउ अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा। सो पहले आते हैं स्ट्रक्चर में, सिलिकॉन को पकड़ता हूं। ठीक है, सिलिकॉन को पकड़ता हूं, तो सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन के बाहरी स्तर में 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे, और यह क्या करेंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे। तो इसके साथ ये एक बॉन्डिंग बनाएगा, इसके साथ ये एक बॉन्डिंग बनाएगा। फिर सिलिकॉन इधर है, ठीक है, इसके साथ यहाँ एक बॉन्डिंग बनाएगा, और इधर बाहर और सिलिकॉन है, इधर और सिलिकॉन है, इधर और सिलिकॉन है। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे एक आर्सेनिक दे रहे हैं। तो पेंटावैलेंट मींस 5 इलेक्ट्रॉन्स विल बी आउटसाइड द ऑर्बिट। सो देखो, यहाँ एक बना रहा है, यहाँ एक बना रहा है, ठीक है, इधर एक बनेगा, और एक सिलिकॉन एटम यहाँ पे दे रहे हैं ताकि समझ में आए आसानी से। तो यहाँ पे एक बन गया। ये डायग्राम हो सके तो स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है। चार इलेक्ट्रॉन बाहरी हिस्सों में, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो, यहाँ का ये बन गया एक, ठीक है,
यहाँ का एक बन गया, ये दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, इससे कंबाइन करेगा, और इसमें से कोई एक के साथ ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे पेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन? ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। नाउ देखो यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्री है, जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है। ठीक है, वो किसका इलेक्ट्रॉन है? दैट इज पेंट्रावैलेंट एलिमेंट ऐड करने के बाद वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री घूम रहा है, तो ये क्या करेगा? अवेलेबल है। अगर बाहर से कोई भी एलिमेंट हम दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए कैपेबल है। एंड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है, तो एंटायर सेमीकंडक्टर और एंटायर स्ट्रक्चर विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, and this negatively charged semiconductor is known as n type semiconductor. ठीक है, that means negative type semiconductor, that is n type semiconductor, n type semiconductor. And due to creation of n type semiconductor, you are available to give electrons to others. एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, तो बाहर कोई भी मटेरियल के साथ अगर देखेगा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो वहां पेयर बनाने के लिए कोशिश करेगा। सो दिस phenomena I can say that entire semiconductor material can donate its electron, extra electrons to others, so it is known as donor type semiconductor, donor type semiconductor. समझ में आया कैसे पेंटावैलेंट एलिमेंट ऐड करने के वजह से तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएशन हो रहा है? यस और नो? अगर यस हुआ देन ही मैं दूसरे स्टेप में आऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, एग्जाम में पूछता है कि कैसे तुम्हारा पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट एलिमेंट क्रिएशन ऐड करने से तुम्हारा एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर आता है, दैट इज क्रिएशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, नाउ दूसरा टाइप का एलिमेंट है दैट इज ट्राइवैलेंट एलिमेंट, दैट इज 4+1 हो गया पेंटावैलेंट, 4 - 1 हो गया ट्राइवैलेंट, दैट इज एडिंग ऑफ ट्राइवैलेंट एलिमेंट, ट्राइवैलेंट एलिमेंट। नाउ मुझे देखना है कि ट्राइवैलेंट एलिमेंट कौन सा है। दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटसाइड, दैट इज गैलियम, गैलियम, इंडियम, इंडियम, बिस्मथ। ठीक है, these are the ट्राइवैलेंट। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रखो चल जाएगा। ठीक है, बिस्मथ याद रखना और उधर रखना एंटीमोनी या आर्सेनिक, एएस एंड बीआई। ठीक है, सो नाउ ये होता है ट्राइवैलेंट, दैट मींस इन लोगों का आउटर मोस्ट सेल पे, आउटर मोस्ट सेल पे तुम्हारा 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, नाउ इसको हम ऐड करेंगे, सिलिकॉन के साथ काम कर रहे हैं, तो सिलिकॉन का 4 एलिमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटसाइड, इसके साथ इसको कॉम्बाइन करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, नाउ अगेन स्ट्रक्चर सिलिकॉन, 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 यहाँ पे हम बिस्मथ ऐड कर रहे हैं, सिलिकॉन, 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 तो इसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। So now electron pair will be created. Electron pair will be created. ठीक है, यहाँ पर दूसरा सिलिकॉन एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ये टाई अप करेगा। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे एक होल जनरेट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर होगा, दिट इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर। सो यहाँ पे सिंस एक वैकेंसी है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है, ये टोटल एलिमेंट जो है, इट इज कैपेबल टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड। कि आउटसाइड से अगर एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट करेगा। सो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन तुम्हारा क्या हो रहा है, एक होल्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो होल्स जनरेट होने का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे होल्स क्रिएशन हो रहा है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा घट रहा है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर डिवाइस जनरेट होगा, एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज सेमीकंडक्टर इज नोन एज योर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर भूल जाओ तो पी फॉर पॉजिटिव, सो पी टाइप सेमीकंडक्टर। एंड ड्यू टू पी टाइप तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे होल क्रिएशन हो रहा है, एंड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ द होल्स नाउ द स्ट्रक्चर इज कैपेबल टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सप्लाई। अगर बाहर में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे होल में जाके बैठ जाएगा, दैट इज वैकेंट प्लेस में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही ये वैकेंट प्लेस में जाकर बैठेगा, सो इसको हम कह सकते हैं दिस सेमीकंडक्टर इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड सप्लाई। सो दिस इज नोन एज एक्सेप्टर, एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम एक चार्ट बनाएंगे, दैट इज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नहीं पहले हम लिखते हैं तुम्हारा डोपिंग टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे होता है चार्ज कैपेबिलिटी। तो डोपिंग, ठीक है, instead of doping I am writing doping element, that is doping element। अगर पेंटावैलेंट हुआ, पेंटावैलेंट, तो which type of semiconductor will be generated? क्विक पेंटावैलेंट हुआ तो कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर जनरेट होगा? सर एन टाइप होगा ना? गुड, एन टाइप। ठीक है, चार्ज कौन सा वो कैरी करेगा, मेजॉरिटी चार्ज क्या कैरी होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। कैपेबिलिटी नेगेटिव करेगा, ठीक है, तो डोनर। अगर ट्राइवैलेंट
ट्राइवैलेंट, तो पी टाइप पी टाइप होगा तो पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव पॉजिटिवली। होगा तो ये एक्सेप्टर। अगर ये भूल जाओ कहीं भी, ठीक है, तो अगर ये भूल जाओ, भूल ही सकते हो, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, एन टाइप दैट मींस नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, और डोनर में देखो पी कहीं पे नहीं है, सिर्फ एन है, ठीक है, तो यू विल फाइंड दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड इट विल वर्क एज अ डोनर। पी टाइप दैट इज पी फॉर पॉजिटिव, एंड एक्सेप्टर में देखो एन नहीं है, ठीक है, पी है, पी टाइप का पी, तो ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड विल बी एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आया इतना? यस यस सर, सर। यस सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखो। डोपिंग, हाँ बोलो। डोपिंग का मतलब क्या होता है सर? डोपिंग है एडिंग, एडिंग, डोपिंग मतलब ऐड करना, तुम बाहर से एक एक्स्ट्रा डोपिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा इम्यूनिटी बहुत पावर बहुत कम है, लेट इट बी, ठीक है, तो इम्यूनिटी, सपोज मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, ठीक है, मेरा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज आई एम टेकिंग अ विटामिन और प्रोटीन टाइप टैबलेट्स और इंजेक्शन, सो ये जो बाहर से मेरा कुछ ऐड हो रहा है जो मेरे बॉडी का अंदर का हिस्सा है नहीं, सो दैट इज नोन एज डोपिंग। तो एलिमेंट में भी यही सेम केस है कि एलिमेंट के अंदर इंटरनल कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ हम छेड़खानी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एक impurity उसमें डालते हैं, so that is known as doping, either I am taking one electron from the semiconductor or I am giving extra electron to the semiconductor, that is known as doping। ठीक है, got it? नो सर, डाउट है अभी भी। देखो, तुम्हारा अगर घर में तुम्हारा ये रहता है, किताब किताब का रैक है, ये सुन लो। सर आपका आवाज कट रहा है सर। अभी ठीक है? हेलो, हेलो, हेलो हाँ अभी ठीक है? सर, कट रहा है सर, आवाज कट कट के आ रहा है सर। एक मिनट रुको, मैं, तुम लोग लेफ्ट मत करो, मैं एक बार लीव करके फिर रिज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। नाउ द वॉइस इज क्लियर? अभी वॉइस क्लियर है? यस सर। ओके, सो मेरा एक सवाल दो, घर में सबके घर में वार्डरोब है, अलमीरा है, यस सर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक्सेस कपड़ा हो जाता है तो तुम क्या करते हो? अलमीरा का हम लोग अलमीरा का तुम्हारा काउंट नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तुम्हारा अलमीरा का फुल रैक फुल है, फिर तुम्हारे पास एक्सेस कपड़ा आ चुका है, तो तुम क्या करते हो? सर जो पुराना कपड़ा होगा वो निकाल देंगे। निकाल दोगे, ठीक है, और तुम अगर ये कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि हम लोगों का वार्डरोब जब फुल हो जाता है, ठीक है, वार्डरोब जब फुल हो जाता है तो हम लोग ये नहीं करते कि हाँ मेरे पास अलमारी भर्ती कपड़ा है, हम बाहर से और कपड़ा खरीदेंगे नहीं, ऐसा करते हैं क्या? नो सर। ठीक है, डोपिंग भी यही है, जब मेरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर फॉर्म है, दैट मींस फुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फुल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर और फुल नंबर ऑफ होल्स विल बी देयर, ठीक है, तो हम लोग, तुम्हारे पास जब नया कपड़ा आता है, दैट मींस बाहर से तुम्हारे पास नया कपड़ा आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, नाउ यू हैव टू एडजस्ट दैट कपड़ा इन दैट अलमीरा, तो तुम क्या करोगे, अब अपने अलमीरा से पुराना कपड़ा निकाल दोगे, ठीक है, और बाहर से जो कपड़ा आ रहा है उसको ऐड करोगे अलमीरा में, सो ये होता है डोपिंग, एक्सटर्नल कुछ सप्लाई हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये डोपिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, डोपिंग कब कब होगा, अगर मेरा अलमारी में खाली पोजीशन है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कपड़ा को ऐड करेंगे, कोई जरूरत नहीं है पुराना कपड़ा निकालने का,
ठीक है। अगर मेरे पास ऑलरेडी फुल है, कपड़े से पूरा अलमारी भरती है, तो क्या करेंगे, हम पुराना कुछ कपड़ा निकाल लेंगे, दैट इज आई एम टेकिंग फ्यू ओल्ड क्लॉथ फ्रॉम द अलमीरा। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट सर इज डोपिंग। हाँ बोलो। सर बट उसके लिए तो मतलब अगर डोपिंग अगर होगा तो उसके लिए पोटेंशियल का होना जरूरी है ना सर, अगर हाँ, पोटेंशियल देंगे तभी ना सर डोपिंग होगा। पोटेंशियल नहीं, तुम्हारा तो सेमीकंडक्टर मेन है, हम लोग कोई भी अमाउंट सेमीकंडक्टर नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं या एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ज्यादा तुम्हारा चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ में 1000 इलेक्ट्रॉन में ऐड करूंगा तब पोटेंशियलिटी का बात आएगा। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूंगा कि तुम्हारा अभी क्लास में तुम्हारा कितना सब्जेक्ट्स है, अभी सेमिस्टर में तुमको कितना सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ रहा है? सर 5 सब्जेक्ट। 5। अगर मैं बोलूंगा चलो एक सब्जेक्ट तुम एक्स्ट्रा पढ़ लो, तुम देखोगे ठीक है चलो पढ़ लेते हैं एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो लाइक अगर मैं बोलूंगा ठीक है एक सब्जेक्ट है तो तुम एक्स्ट्रा पढ़ लो, और मैं अगर कहूंगा ठीक है चलो एक सब्जेक्ट को तुम लेस प्रायोरिटी दो, उसको उतना पढ़ने की जरूरत है, तो तुम लोग देखोगे पांचों सब्जेक्ट में से पांचों सब्जेक्ट तुम लोग 100% नहीं पढ़ते हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो होता है ये पोटेंशियल, तुम्हारा पोटेंशियल पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वही मैं बोलूंगा कि तुम 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ठीक है 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसके बदले में तुम्हें मैं बोलूंगा ठीक है चलो 3 सब्जेक्ट्स तुमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो, या 5 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ और 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ो, तो देखोगे तुम्हारा पोटेंशियलिटी के ऊपर मेजर करेगा, अदरवाइज पोटेंशियलिटी के ऊपर उतना मेजर नहीं होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल या तुम्हारा मेन चेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट हम लोग उतना मेजर नहीं करते, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन्स का हेरफेर का बात है, +-1। गॉट इट? यस सर। सर लेकिन अगर मतलब डोपिंग अगर करेंगे इलेक्ट्रॉन का सर, तो उसके लिए तो कुछ हीट जनरेट होगा तभी ना सर डोपिंग होगा, नहीं तो ऐसे डोपिंग हो सकता है सर। ऐसे नहीं, वो केमिकल डोपिंग होता है, ये नहीं कि तुम एक सिलिकॉन और एक आर्सेनिक को लगा के एकदम पैचअप कर दो, ऐसा नहीं होता, फैब्रिकेशन। ठीक है, उसके लिए हम लोग को और हाई स्टडीज दैट इज VLSI। ठीक है, अभी उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ मिक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, बचपन में देखो तुम लोगों को क्या किया जाता था, शरबत बनाया सिखाया जाता था, कि चीनी लो पानी लो घुल जाता है, शरबत शरबत बनाया जाता है। ठीक है, और सबने ये मिक्सचर बनाया है घर में कभी ना कभी। यस सर। ठीक है, बट तुम लोग जब हायर एजुकेशन में गए तब तुम लोगों को क्या पता चला, हम किसी भी अमाउंट को चीनी को किसी भी अमाउंट के पानी में घुल के शरबत नहीं बना सकते, प्रेसिपिटेट गिरेगा कुछ चीनी का प्रेसिपिटेट अगर मैक्सिमम अमाउंट एक्सटेंड होगा, है कि नहीं? यस सर। तो तुम लोग अभी 1 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो इन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैं अभी फैब्रिकेशन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, फैब्रिकेशन के ऊपर बहुत सारा ये है तुम्हारा कंडीशन है, उसके लिए VLSI है कि 2 एलिमेंट को हम अगर फैब्रिकेट कर रहे हैं और एक एलिमेंट में बना रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन अभी नहीं हो रहा है क्योंकि क्लास खत्म हो चुका है, ये डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मैं अगर 2 एलिमेंट को कंबाइन करूंगा, तो ये नहीं कि ये तुम्हारा वो मसाला मुड़ी नहीं है कि एक साथ लाओ और डब्बे में डालो और मिक्स कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन क्रिएट करेगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी उन लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज नोन एज फैब्रिकेशन। और ये फैब्रिकेशन के लिए तुम लोगों का अभी तुम बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में हो, और तुम लोग CSE में हो, तुम लोग का फैब्रिकेशन है भी नहीं, EC वालों का VLSI है, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लो कि मेरे पास चीनी है पानी है, ठीक है, हम उसको शरबत बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर तुम लोगों का वो ब्रांच पेपर है नहीं, अगर बाई चांस तुम लोगों को कभी कोई एक्स्ट्रा तुम्हारा इंटरेस्ट जगे, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आई विल शो, आई विल गिव यू द टॉपिक दैट इज VLSI। वो VLSI में अगर इंटरेस्ट जगे तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा क्योंकि तुम लोग सब CSE के हो। ठीक है, तो वहां पे देखोगे कि एक शरबत बनाने के लिए मेरा पानी का भी अमाउंट दिया रहता है, चीनी का भी अमाउंट दिया रहता है, और थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके,
I am concluding the class. Thank you all. Thank you, sir.